truth. सत्य। Why I'm asking all these things is because truth is something that in everything that we do, in our relationship with God, without truth, it will never be consistent. तो क्यों सत्य की बात करें? क्योंकि सत्य अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा परमेश्वर का संबंध भी नहीं हो सकता। Without truth, we can never be consistent either in our relationship with God, either in our prayer life, in everything that we know that we can do whole of our life. Without truth, it will surely die one day. हमें पूरे जीवन जो परमेश्वर संबंध बनाना है या प्रार्थनाएं करनी है, अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। So can anybody tell me what is truth? कोई बता सकता है कि सत्य क्या है? We every time we say speak the truth, speak the हमेशा truth. कहते हैं सच बोलो, सच बोलो। Yes. The Bible, God says, Jesus says, I am the truth and the way and the life. Amen. Any other person who can tell or who can define truth? Explain to me. You are talking to your friends. Something that doesn't change. Something that doesn't change. You tell the reality. The reality. Yes, that's the word. Something that doesn't change is consistent, and something that have to match with the reality. That is called truth. Anytime it changes, it becomes no more truth. कोई भी चीज जो बदल जाती है वो सत्य नहीं। सत्य वही है जो आज ऐसा है, कल भी वैसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। Truth must be consistent. सत्य हमेशा एक जैसा ही रहता है। When you are sleeping, when you are walking, when they call you, you will never think when you are saying the truth. सत्य एक ऐसी चीज है कि अगर आप थके हुए हैं तो आप वही बात बोलेंगे, आप सो रहे हैं तो भी अपने मुंह से वही बात निकलेगी, आप परेशान हैं तो भी वही बात निकलेगी। You will only think when you are about to lie. झूठ बोलने से पहले सोचना पड़ता है, सच बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। Where did you come from? आप कहाँ से आ रहे हो? You know where you came from. आपको तो पता है आप कहाँ से आ रहे हो? And you will be thinking, वो ना वहाँ से I'm coming. आ रहा हूँ। But when you know the truth, लेकिन अगर आपको सत्य पता है, where are you coming from? आप कहाँ से आ रहे हो? I'm coming from Joe's house. आप बोल सकते हैं कि मैं उसके घर से आ रहा हूँ। You will never think to say that. सत्य बोलने से पहले आप सोचोगे नहीं। Truth सत्य is what is lacking in every Christian's for any relationship with God not to be consistent. सत्य एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर से संबंध रखने में रोकती है। अगर सत्य नहीं है तो When you live in truth, अगर आप सत्य में जीवन जी रहे हैं, your relationship with God is consistent. परमेश्वर का आपका संबंध एक जैसा ही रहेगा। You will know that every day you move out of truth, आपको पता है किसी भी दिन आप सत्य के बाहर गए you will have a strained relationship with तो God. परमेश्वर का संबंध खराब हो जाएगा। Something that happened in the Garden of Eden. आप देखते हैं अदन की बगिया में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। Before, Adam and Eve was in truth with God. पहले आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर सत्य में थे। Their relationship with God is very smooth and consistent. परमेश्वर से उनका संबंध बहुत अच्छा और अच्छा चल रहा था। But the day they brought lie in their life, पर जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में झूठ को आने दिया, the relationship with God spoiled. परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। So that is why I ask, anyone that is consistent in prayer must be truthful in himself. कोई इंसान जो प्रार्थना में बना रहता है वो अपने अंदर सत्य को रखा ही होता है। Anybody that has a consistent relationship with God, know that that person is a truthful person. अगर कोई इंसान परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाए हुए है और लगातार संबंध अच्छा ही है तो मतलब परमेश्वर वो इंसान सत्य में जीवन जीता है। Many of us, we are not consistent because sometimes today we lie, tomorrow we realize that we lie, we ask for forgiveness, and another day we lie again, and we lie again. So it makes us not be consistent in anything that we are doing with God. परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्यों खराब होता है कि आज हम कुछ करते हैं, आज हम झूठ बोलते हैं, कल उसकी माफी मांगते हैं, परसों दूसरा झूठ बोलते हैं, अगले दिन फिर उसकी माफी मांगते हैं, तो हम यही करते हैं। Truth is everything. सत्य सब कुछ है, Truth is power. उसमें सामर्थ्य है। Truth is medicine. दवाई भी सत्य ही है। Truth is something that it is there, but you cannot take it and heal yourself. But it is only thing that can heal you faster than any other medicine in the world. सत्य एक ऐसी चीज है जो आपको चंगा कर सकता है, लेकिन आप तब को अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको चंगा नहीं करेगा। I call truth
as an effective medicine. हमारे भाई कहते हैं कि सत्य एक दवाई की तरह है। When you suffer emotionally, अगर आप अपने मन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, something is lacking in you. कुछ कमी है आपके अंदर, आपको महसूस हो रहा है, When you become afraid of something, आपको किसी चीज से डर लग रहा है, something is lacking कुछ कमी है, because there is no truth in you. इसका मतलब आप में सत्य नहीं। You know, truth is something that stays with you, that gives you courage and power when everybody left you. अगर हर कोई आपको छोड़ भी दे, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा हिम्मत देता है। You have a case court आपका कोर्ट में केस चल रहा है, and you have no money. पैसा नहीं है, And people are really, they are there to oppress you and take what belongs to you. और लोग खड़े हुए हैं आपके ऊपर हावी होने के लिए, आपका जो है उसको ले जाने के They लिए। are so rich. वो बहुत अमीर है आपके सामने They वाले, beg many people to come and testify against you. उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है आपके खिलाफ गवाही देने के You लिए। have no money to fight them, आपके पास पैसा भी नहीं है उनसे लड़ने के लिए, but you know you have one thing: पर आपको पता है आपके पास एक चीज है, the truth. सत्य। It's when everybody left you, that is what gives you confidence. अगर हर कोई आपको छोड़ भी दे तो सत्य आपको हिम्मत देता है। I will win the case because I know I am truthful. मैं केस जरूर जीतूंगा, चाहे मुझसे कोई नहीं भी खड़ा, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। That is only thing that stands with you. सिर्फ वही चीज है जो आपके साथ खड़ी हुई है। That is only person that comes and testify for you. सिर्फ आप सत्य की वजह से ही आगे गवाही भी दे सकते हैं। Because when those people they paid to testify against you, क्योंकि जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं आपके खिलाफ गवाही देने के when लिए, they come in front of the judge, जब वो जज के सामने आएंगे, they will be stammering वो हकलाएंगे, because they have no truth in them. क्योंकि उन्हें पता है पैसा तो मिल गया है, लेकिन झूठ भी बोल रहे हैं। What they told to judge today, tomorrow they will say another thing. क्योंकि उन्हें पता है कि आज जज के सामने कुछ बोल देंगे, लेकिन बाहर निकल के फिर कुछ और बोलेंगे, Because they have told them what to say. क्योंकि उनको बताया गया है कि तुम्हें जज के सामने इतना और ऐसा बोलना है। And if judge asks them what they were not taught, they will not know what to say. लेकिन अगर जज ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उनको पढ़ाया नहीं गया है, तो वो छकला जाएंगे। But the truth in you does not learn how to speak. लेकिन सत्य को बोलने के लिए आपको सीखना नहीं पड़ता, You speak fluently. आप आराम से बोल देते हैं। Truth is something that takes away the fear in you. सत्य एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से डर को निकाल देती है। When they ask you, did you steal? किसी ने आपसे पूछा आपने चोरी की है, In truth, you know you did not steal. अगर आपको पता है अंदर से मैं सत्य है कि मैंने चोरी नहीं करी है, You have peace of mind. तो आपको शांत हो कि हाँ मैंने नहीं You करी say, है। no, I did not take आप this. बोलोगे हाँ मैंने नहीं उठाया। That is what that is so powerful that many of us lack. तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसमें इसी चीज की कमी है। You know, in all the families, सारे परिवारों में, all the parents and all the forefathers and great grandfathers, जितने भी पिता, दादा और हमारे परदादा हैं, I found that they are so easy to teach people about the religion and the culture. हम ये देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें धर्म का तो बहुत ज्ञान देते हैं। They try and teach, their kids, their children on what they will do to survive in life. वो ये तो बताते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या करना है, But what they don't tell them mostly is the truth. लेकिन वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि सच के साथ रहना है। An actor, a famous actor, एक एक्टर है, immediately he have a child, अभी उसके बच्चा हुआ, he begin to train the person to replace him in the acting movie. अगर कोई एक्टर है उसके बच्चा हुआ तो शुरू से अपने बच्चे को एक्टिंग सिखाना शुरू कर देगा। Those politicians, अगर कोई पॉलिटिशियन है, when they have a child, उसके बच्चा होगा, they begin to train them on how to replace them to play politics. वो बच्चे को शुरू से ही पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ाना शुरू कर देंगे। Most families they think about their religion, तो जो लोग घर में होते हैं वो लोग धर्म की चीजें सिखाते हैं, they vilify about the cultures. वो लोगों को संस्कृति की नॉलेज देते हैं, But what they fail to knock in their brain is the truth. लेकिन वो अपने बच्चों में क्या नहीं डाल पाते, सत्य। Because they know, the politicians know, if they teach their child how to tell the truth, they will never stand to win any क्योंकि election. पॉलिटिशियंस को पता है बच्चों को सच बोलना सिखा दिया तो वो कभी जीतेंगे ही नहीं। They only tell them, they twist it in the sense of how to lie. They tell, I want to teach you how to be smart. तो पॉलिटिशियन भी अपने बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं, मतलब कि उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं। Sometimes people, try and, modify bad things and give them good names. कई बार लोग ये करते हैं कि कुछ चीजों को सुंदर सुंदर नाम देके उन्हें गलत बना देते हैं। But they don't know that truth is the only thing that can keep them consistent until they finish and hand over to their generations. लेकिन वो ये नहीं पता कि सत्य ही एक ऐसी चीज है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो दे सकते हैं।
John chapter 8 verse 32. हम बोलते हैं यूहन्ना का 8 का 32 Jesus said, you यीशु shall ने know कहा the truth and the truth कि shall तुम set सत्य you को free. जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। This is a promise by ये Jesus. परमेश्वर का वचन है, वादा है। Amen. This is a wonderful promise that can take seriously, especially when you feel the need for some sort of healing. अगर आपको किसी भी तरह की चंगाई चाहिए, ये वादा है परमेश्वर का जो आपको चंगा करता है। When you feel inside you, I want some healing, अगर आपको अंदर से महसूस हो कि नहीं मुझे कुछ चंगाई की जरूरत है, it is only truth that can heal you. तो सिर्फ सत्य ही आपको चंगा कर सकता है। It is only truth that can heal you, whether in the injury of illness, financial hardship, and troubled relationship. चाहे आपके रिश्ते संबंधों के साथ खराब हो, चाहे पैसों की परेशानी हो, सिर्फ सत्य ही आपको हर एक चीज से छुड़ा सकता It है। is only truth that can heal you. सिर्फ सच ही बड़ा बचा सकता है। When you are fighting with yourself, अगर आप अपने आप के साथ लड़ रहे हैं, when you are always sad, आप हमेशा दुखी हो रहे हैं, when you are always thinking, आप हमेशा सोचते ही रहते हैं, you are troubled inside you, अंदर से आप बहुत परेशान हैं, it is only truth that can heal you. सिर्फ सत्य ही है जो आपको छुड़ा सकता है। That is why Jesus succeeded in this world, because he has truth. यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों जीत पाए? क्योंकि उनके पास सत्य था। That's why he said, you shall know the truth and the truth shall set you free. इसलिए बाइबल बताती है यूहन्ना के 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। Yes. In this world today, many people have been forgiven, many people have been set free because they just say the truth. आज बहुत सारे लोगों को माफी मिली है, बहुत सारे लोग छुड़ाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सत्य बोला। Because sometimes when you lie, कई बार जब it आप झूठ बोलते हो, provokes, most times, when you lie, you provoke the other people. जब आप झूठ बोलते हो, आप दूसरे बंदे को और उकसाते हो। Especially when something that is obvious, something that somebody knows that this is completely a lie, and he asks you, did you do this? And in front of the person you are lying. अगर आप कोई इंसान जानता है कि आपने गलत करा है और आपसे पूछता है क्या तुमने ये किया, उसे It तो provokes a lot. और आप झूठ बोलते हो तो उसको और गुस्सा आता है कि इसने झूठ कैसे बोला, मुझे तो पता है इसने ये चीज करी है। But you know that when your parents pick a stick to hit you, लेकिन आपको पता है जब आपके माता पिता डंडे उठाते हैं आपको मारने के लिए, and they say, did you do this? वो कहते तुमने ये किया? And you say, yes, mom, I did this. तो आप बोलोगे कि हाँ मम्मी मैंने ये किया है, It makes their heart. तो उनका दिल पिघल जाएगा, वो Maybe डंडे आपको your नहीं parents, पड़ेंगे। they will put down the stick वो आपके माता पिता वो डंडे नीचे रख देंगे just because you said the truth. क्योंकि आपने सच बोला है। And that's the weapon that Jesus Christ used. और वही सत्य का ऐसा हथियार जो यीशु ने भी इस्तेमाल किया। And that is the only thing that can save us when everybody left तो us. सिर्फ एक वही चीज है जो हर कोई हमें छोड़ देगा तो यही चीज हमें संभालेगा। That is the only thing that can speak for us. सिर्फ सत्य ही है जो हमारे लिए बोलता है। That only thing that can build confidence in us. सिर्फ सत्य ही है जो हमें हिम्मत देता है कुछ भी करने की। When you know you are standing on the truth, अगर आपको पता है कि आप सत्य की भूमि पे खड़े हुए हैं and people are gossiping और against लोग you, आपके सामने कितनी चुगलियां आपकी कर रहे हैं, you will be smiling आप हमें मुस्कुराओगे कि ठीक है करने दो, that one day victory will be mine. एक दिन तो उन्हें पता चलेगा कि Those सफलता मिलेगी। people who are talking against me, जो लोग मेरे खिलाफ बोल भी रहे हैं those people who don't know the truth and they talk, क्योंकि वो सत्य नहीं जानते और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, the same way they will come and they will say sorry to me. एक दिन वही आके मुझसे माफी मांगे। Because you are so proud speaking because you have truth in you. क्यों आपके अंदर हिम्मत है? क्योंकि आपको पता है आप सत्य के साथ खड़े हो। Let's go to Genesis chapter 1. हम खोलते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय Genesis chapter 1 verse 18. 1:18। We will see why people fail to tell the truth. आज हम देखते हैं कि क्यों लोग सत्य बोलने नहीं पाते हैं, Why people are afraid to tell the truth. क्यों लोग सत्य बोलने से पहले डरते हैं। This is the reason why we are going to find. We are going to take it gradually. Genesis chapter 1 from verse Genesis chapter 20. Genesis chapter 20 from verse 1 to 18. We are going to read gradually. Genesis chapter 20 from verse 1 to 18. हम खोलते हैं उत्पत्ति पुराना नियम पेज नंबर 22 20वां अध्याय पहले वचन से 18वें वचन तक। Genesis chapter 20. हम पढ़ते हैं अब्राहम और अबीमेलेक। Yes. फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन,
जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? 5 क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। 6 परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। 7 No, leave it there. Amen? In chapter 6, Abraham went to King Abimelech अब्राहम अबीमेलेक राजा के पास जाता है with his wife, अपनी बीवी के साथ, his wedded wife. उसकी शादी जिससे हो चुकी थी। And the king asked, is this your wife? और राजा ने पूछा कि क्या ये तेरी बीवी है? She said, no, अब्राहम ने कहा, नहीं नहीं, ये तो she's मेरी my sister. ये तो मेरी बहन है। Now the king have to take his wife to sleep with her. तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तेरी बहन है तो मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके साथ सो जाऊंगा। The king asked, is it your wife? राजा ने पूछा, क्या ये तेरी बीवी She है? said, no, she's my sister. तो नहीं नहीं, ये मेरी बहन है। I was trying to think, what led to this? तो हमारे भाई ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? Why people are afraid to speak the truth? क्यों लोग सच बोलने से डरते हैं? Why people are afraid, let whatever happen, but I will lie. क्यों हम लोग ऐसा नहीं सोचते चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच ही बोलूंगा? Your wedded wife, आपकी पत्नी, you went with her. आप उसके साथ कहीं गए And the king asked you, is it your और wife? राजा ने पूछा क्या तुम्हारी बीवी है? You said, no, it's my sister. नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है। Oh, she said, oh, I love your sister. तो कहते अरे तुम्हारी बहन से तो Oh, you मुझे प्यार said, है। yeah, take my sister. अरे ठीक है, ले जाओ। And she took her inside the room. और उसको ले जाता है वो कमरे में And you went to the other room. और वो दूसरे रूम में चला जाता है। The husband didn't speak the truth. क्या पति ने सच बोला? The wife also didn't speak the truth. पत्नी ने भी बोला ये मेरा भाई है। The two persons married. They couldn't say the king. Yes, we are married. Yes, we are one flesh. We are one blood. You can't take my wife. तो जो लोग, जो दोनों लोग पति पत्नी थे, एक शरीर एक आत्मा थे परमेश्वर में, उन लोगों ने भी सच नहीं बोला। You know, in this kind of scenario, एक ऐसी परिस्थिति में this is where gossip comes in. यहीं पे चुगलियां आनी शुरू हो जाती हैं। If anybody who did not see how it started, अगर किसी ने ये नहीं देखा कि ये शुरुआत कैसे हुई, तो हर बंदा अब्राहम और सारा को गलत oh, समझेगा। they will say, oh, King Abimelech, they took his wife by force. और हर कोई क्या बोलेगा कि अबीमेलेक राजा ने भी गलत करा कि जबरदस्ती उसकी बहन को People will मारा। start to gossip, oh, this is that king that takes people's wife. और लोग क्या करेंगे, चुगलियां करेंगे कि देखो ये राजा किसी की बीवी को लेकर आ गया। But they did not know the truth. पर उनको नहीं पता कि सच क्या है, They did not know the roots. उन्हें उस चीज की जड़ नहीं पता। They won't lie can cause. वहीं से देखिए कि झूठ क्या क्या कर That's सकता why I है। start to think why these two persons couldn't tell the simple truth. तो हमारे भाई कह रहे क्यों ये दोनों लोग सच नहीं बोल पाए? The wife said, the husband said, you are my sister. The wife said, he is my brother. पति ने कहा ये मेरी बहन है और पत्नी ने कहा ये मेरा भाई है, But they are not. पर वो ऐसा तो नहीं है। Then why they should lie? Why they couldn't take the truth क्यों? to the king? क्यों वो सच के साथ राजा के पास नहीं जा सके? That's the problem that we face every day of our lives. हम भी अपने जीवन में रोजमर्रा में इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हैं। Our truths are divided. हमारा सच बटा हुआ है। There are people that will feel that we could tell the truth. बहुत सारे लोग हैं जो सच बोलने में असफल होते हैं And there are people that say, oh, we will not tell these people the truth. और कई लोग कहते हैं कि हम सच ही बोलेंगे। But truth has no classification. सत्य अलग-अलग तरीके से नहीं बटा हुआ। There is no people that you will tell the truth and others will not tell the truth. कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो सत्य को अपनाते हैं और कुछ लोग सत्य को नहीं अपनाते हैं। Most of the times, when I start to think about this, कई बार हमारे भाई जब इस बारे में पढ़ते हैं, I start to think about the fear sometimes that make us, to lie instead of speaking the truth. तो हमारे भाई कह रहे थे वो इस बारे में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ये डर है जो हमें सच बोलने से रोकता है। I start to think about the children तो उन बच्चों के बारे में सोचते हैं हमारे भाई, when their parents are holding the stick. जब उनके मम्मा पापा
डंडी लेके खड़े होते हैं when they see this kid, they start to be afraid. और वो डंडी को देख के डर जाते Oh, हैं। if I could say the truth, अगर मैं सच बोल दूं my mommy would beat me. तो मम्मी तो मारेगी, So let me just lie. तो so I चलो झूठ don't बोल get देता हूँ this. कि नहीं मैंने ये सब नहीं किया। So I felt that Abraham was afraid of the king. तो ऐसे ही अब्राहम भी राजा से डरा हुआ था। Oh, if I say she's my wife, I may be murdered. अगर मैं उसे बता दूंगा कि ये मेरी बीवी है तो ये मुझे मार देगा, If I say, oh, she's my wife, because the wife was so beautiful. क्योंकि उसकी बीवी बहुत सुंदर थी तो उसको डर था कि राजा मेरी बीवी को ले लेगा और मुझे मार देगा। Oh, she said, oh, if I accept, the king might kill me and take away my wife. तो मैं ठीक है कि मैं बता दूंगा पति पत्नी मेरी बीवी इतनी सुंदर है वो मुझे मार के मेरी बीवी को ले जाएगा। So when I start to ask myself, तो हमारे भाई ने अपने आप से ये चीज पूछी, when you tell the king the truth that she's my wife, अगर आप राजा को सच बोल देते कि ये मेरी बीवी है, you think that she will kill you and take away your life. आपको ये लगता है कि वो आपको मार देगा और अपनी बीवी को ले जाएगा, Okay, when you lied, लेकिन जब आपने झूठ बोला still the king took away your wife. फिर भी राजा तुम्हारी बीवी को तो ले ही गया, Then what is the difference? तो फायदा क्या हुआ? You are alive आप जिंदा हो and you saw the king yourself taking your wife. और आप खुद away. देख रहे कि तुम कोई और इंसान तुम्हारी बीवी को लेकर जा रहा है, What are the difference? तो फर्क क्या है तुम्हारे जीने और मरने में? He took your wife in front of you तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को कोई और लेकर जा रहा है and you are afraid that you lied and you think that he will kill you and take your wife. और तुम डरे हुए बैठे हो कि अरे ये मुझे मार I देगा। start to ask myself, what is the justification? of हमारे this? भाई ने समझा कि क्या चीज है ये। Let's see what happened in verse 7. हम देखते हैं 7वें वचन में क्या Let's see हुआ। what happened in verse 7. 7वें वचन में, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। Amen. Verse 7. Immediately comes the Spirit of God. जब वो उसकी बीवी को अंदर लेके गया तो परमेश्वर की आत्मा आई वहां पर। If not the Spirit of God, अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं होती the king would have slept with his तो wife. राजा उसकी बीवी के साथ सो जाता, The king said no. The God said no. The Spirit of God was saying that. लेकिन परमेश्वर की आत्मा वहां पर थी। He said, the king, you shouldn't do this. उसने बोला कि राजा तू इसको नहीं छोड़ सकता, He is somebody's wife. किसी की पत्नी है। But it is not only about God, but the king first grieved in the heart. तो ये सिर्फ परमेश्वर की बात नहीं, लेकिन राजा को भी अंदर से बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। Read that. Let's see what the king felt from 8 हम down. देखते हैं 8वें वचन में क्या लिखा है। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। 9 तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यही क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया? You know, there is a lie that you will do that bring a blessing to people. तो आपके झूठ की वजह से लोगों के ऊपर बड़ा पाप आ सकता है। You know that a lie that you will lie that will destroy people. बहुत बार आपका झूठ ही लोगों को नाश कर सकता है। If it is not God that intervened, अगर परमेश्वर बीच में नहीं आते it would have been curse upon the king. तो इस पूरे राजा और राजा के पूरे परिवार के ऊपर एक श्राप पड़ जाता। If not because of the intervention of the Spirit of God, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बीच में आई the whole household of the king would have perished. तो पूरा राजा का घर बच गया, नहीं तो खत्म हो जाता, Because he was innocent, क्योंकि वो निर्दोष था। but because of the lie of Abraham. लेकिन झूठ किसने बोला? अब्राहम ने। Because Abraham told lie because of fear. और अब्राहम ने झूठ क्यों बोला? डर के कारण। Abraham told lie because of what he think in the memory. अब्राहम ने क्यों झूठ बोला? कि उसने अपने दिमाग में ही कुछ कल्पना कर दी। You know, sometimes we suffer from what we call not physical problem. We suffer from, imagination problems. कई बार हम जीवन की परिस्थितियों से परेशान नहीं होते, लेकिन अपनी ही कल्पनाओं से परेशान होते हैं। We suffer from emotional हम problems. इमोशनली बहुत कुछ सोचते हैं और परेशान होते हैं। You know, sometimes when maybe a wife and a husband, maybe like wife when the husband goes out, जैसे कि कोई पति और पत्नी, अगर पति बाहर जा रहा है or the wife will be thinking, oh, he's with another girl, तो पत्नी सोचती है कि अरे मेरा पति किसी और लड़की के साथ है, and she will start to cry and cry. और वो रोती रहेगी। Because
is just in imagination. क्योंकि वो सिर्फ कल्पना कर रही है, It is not real. It is not physical. ऐसा नहीं हो रहा है असली संसार में, लेकिन वो सिर्फ सोच रही है। Maybe he called the husband, और वो हस्बैंड को फोन करती है, and maybe the office or anybody around picks the phone and it's a lady. और उसके ऑफिस में उसका फोन कोई लड़की उठाती And he है will say, your husband will call you back. और वो बोलती है कि अपने पति को थोड़ी देर में The फोन wife कर। starts to cry. पत्नी और रोने लग जाती है, She's with the lady. अरे अब वो लड़की के She साथ starts to imagine वो सोचने लग जाएगी what they will be doing right वो now. क्या कर रहे होंगे दोनों साथ में, He starts to have headache. उसके सर में दर्द हो जाएगा And all the things will spoil all the day. और पूरा दिन उस औरत का खराब, It's imagination क्योंकि problems. उसकी कल्पना में परेशानी है, No, we imagine the outcome of such problems. क्योंकि हम इन परेशानियों का अंत तक सोच लेते हैं And we hurt ourselves. और उससे क्या होता है, हमें ही नुकसान। And to find out that nothing happened. लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। That shows the state in which we find ourselves. लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हम सब आते हैं, Emotional problems. इमोशनल प्रॉब्लम, We think about our life. हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं Oh, my life will be so bad. कि मेरा जीवन कितना खराब हो I गया am है, useless. I am मैं तो nothing. बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। Imagine my life. Means I can't live tomorrow. No need for me to live. मेरे जीवन में कुछ आशा नहीं है, मुझे क्या फायदा कल तक जीने You का। know, we imagine our life and we find out we are hopeless. हम अपने जीवन को अपने कल्पनाएं करते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन में कोई आशा ही नहीं है, And we cry and cry and और हम cry. रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, From crying we develop depression. और रोने से क्या होता है, डिप्रेशन में And चले from जाते हैं, that depression we cause ourselves physical sickness. और डिप्रेशन से क्या होता है कि हम शरीर की बीमारियां लग जाती हैं। And after you thought that you become useless, और आपने जब सोचा कि आप बेकार हैं, then in few years you become someone. और लेकिन कुछ सालों में आप कुछ बन गए, And after you become someone, you already suffer from depression disease. और धीरे धीरे अगर आप डिप्रेशन में जाते गए तो आपको उसकी बीमारी लग जाएगी। But this is the disease you created for yourself. लेकिन ये बीमारी आपने खुद ही अपने लिए बनाई है। Where you were imagining about your life. आप सिर्फ अपने जीवन के बारे में कल्पनाएं करते हैं, You thought your life would be useless. आपको लगता है मेरा जीवन तो बेकार And है, after you become successful, लेकिन अगर आप सफल हो भी गए, then you have sickness to deal with. लेकिन आप बीमारियों को That देखकर is ही the सफल हो problem गए। that we find ourselves. इस परिस्थिति में अपने आप को हम देखते हैं। The lie that we lie sometimes जो झूठ हम बोलते हैं कई बार can cause problems. हमारे जीवन में परेशानी ला सकते हैं। You might go and you might tell some kind of lie to a family, कई बार हम किसी परिवार में देखिए कोई झूठ बोलते हैं and they start to fight against और उस themselves. परिवार में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। Everybody start to hate each other हर कोई उससे नफरत करने लग जाता है because somebody told a lie. कि किसी ने कुछ झूठ बोला। Many people today have lost their life आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है because somebody come and testify wrongfully. क्योंकि किसी ने उनके खिलाफ कोई झूठी गवाही दी। I've seen somebody that was, murdered in US. हमारे भाई बता रहे यूएस में, अमेरिका में किसी आदमी को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। He was tried. He was accused of murder. एक इंसान को इल्जाम लगाया गया कि इस आदमी ने मारा है, उसको सिर्फ इल्जाम लगाया गया Because somebody came and testified that he's the one क्योंकि that किसी ने आके murdered. गवाही दे दी कि इस बंदे ने इसको मारा है। Then after they killed him, उस आदमी के मरने के बाद 20 years later, जब उसके ऊपर केस चला और उसको मार दिया गया, कोर्ट में फांसी चढ़ा दिया गया, 20 साल बाद they found out the original killer of the person. उन्हें पता लगता है कि ये निर्दोष था, कोई और किसी और ने खून किया था। See how lie can destroy आप someone. देखिए कि झूठ कैसे किसी का जीवन खराब कर सकता है, But there is nothing like the truth. पर सत्य की जगह तो कुछ No नहीं। matter how long the truth may hide, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्य कितने समय से छुपा हुआ है, it must rise. एक दिन बाहर तो आएगा। No matter how long you hide or hid the truth, कितना ही आप सत्य को छुपा के रखें, it will break every chain and एक rise. दिन तो वो भी सारी जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलेगा। No matter how long you try to conceal lie, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ही कोशिश कर लें सच को छुपाने की, truth will break the door. सच एक दिन दरवाजा तोड़ के भी बाहर आ सकता है। You may think, oh, the court have closed the case. आपको लगता है कि कोर्ट ने तो केस बंद कर दिया है तो पता Or नहीं you may चलेगा। think we have lied, we have succeeded. आपको लगता है कि अरे मैंने झूठ बोल दिया और मैं तो जीत When गई। truth comes, लेकिन जब सच बाहर निकलेगा, the judge will reopen the case. जज दोबारा केस खोलेगा। When truth comes, जब सच निकलेगा, the court will open again. कोर्ट दोबारा खुलेगा, Because you cannot take away the truth. क्योंकि हम सत्य को छुपा नहीं सकते। It may take long हो सकता है कि लंबा समय to लग जाए, tell you that truth is everlasting. लेकिन सत्य हमेशा अनंत है। Truth is
only thing that I've seen in the world that never grow old. सत्य एक ऐसी चीज है जो कभी पुराना नहीं होता। You may think, oh, it is 30 years back. आपको लगता होगा शायद ये बात तो 30 साल पुरानी है, But when this truth comes, it starts anew. लेकिन जब सत्य बाहर आता है तो वो नया ही होता है। Oh, I killed him 30 years back. मैंने इस आदमी को 30 साल पहले मारा, The day the truth that comes that you are the one that murdered the person, लेकिन एक दिन तो वो सत्य में बाहर आया कि तुम ही थे जिसने उसको मारा। the case will start anew. केस दोबारा खुलेगा, Whether it is 30 years back, चाहे वो 30 साल बाद whether हो, it is 50 years back, चाहे 50 साल पुराना केस हो, the truth must surely come to stand. सत्य एक दिन बाहर तो आएगा That ही। is what we fail to understand in और life. यही चीज हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते। The truth is the only thing that Jesus had, and he succeeded without a single bullet. तो सत्य ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से यीशु जीता बिना किसी गोली चलाए। I was wondering, हमारे भाई सोच रहे थे anybody that can do what Jesus did कि अगर कोई ऐसा कुछ कर सकता है जो यीशु ने किया without battalions of armies बिना किसी सैनिकों के, to succeed, to conquer people. लोगों के ऊपर राज करने के लिए कोई बिना सैनिकों के कर सकता है। But throughout the state of Jesus on earth, लेकिन जब यीशु का पूरा सफर जो धरती पर he था, fired no single bullet. उन्होंने एक भी बंदूक नहीं चलाई, He had no gun in himself. उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, But his bullet and gun that I see was only the truth. लेकिन सिर्फ सत्य को लेकर उन्होंने सारी जय पाई। He used the truth. उन्होंने सत्य का इस्तेमाल किया। I tell you the truth. उन्होंने कहा मैं सत्य You बताऊंगा shall know the truth. कि तुम सत्य को जानोगे The truth shall set you और free. सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। Any person that the Son of Man sets free is free indeed. और जिसको भी परमेश्वर के पुत्र ने छुड़ा Love your दिया, neighbor as yourself. अपने दुश्मनों से अपने जैसा ही प्रेम रखो। That is the truth. Forgive people. कि लोगों को माफ करो, ये सत्य है। Help the poor. लोग गरीबों की मदद करो। That was the knife and the gun that Jesus Christ had. यही वो चाकू और हथियार थे जो यीशु लेके घूम रहे And थे it worked. और ये काम भी किए। Generation upon generation. पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आज तक भी Parents are transferring the name of Jesus Christ to their generation. माता पिता अपने बच्चों को यीशु मसीह का नाम दे रहे हैं और पीढ़ियों तक चलता जा रहा है। You can't do it to a mother. आप किसी खूनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। You can't tell your child to celebrate a mother, a killer. आप अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखाएंगे कि एक खूनी बनो। But the truth is what Jesus had. Amen. लेकिन यीशु के पास सत्य था। Read from 9 again till verse 10. हम आगे पढ़ते हैं From verse 10, right? 10वें वचन से। Yes. Read down. फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। Amen. Number 11, right? Number 11, stop there. The reason Abraham gave why he lied. अब्राहम ने बताया कि क्यों मैंने झूठ बोला। He said, because thought surely the fear of God is not in क्योंकि this मुझे लगा place. कि जिस जगह पर मैं आया यहाँ लोग परमेश्वर के भय में जीते And I हैं thought that will kill me and take my और wife. मुझे मारेंगे, मेरी बीवी को ले जाएंगे। That was the reason Abraham gave. अब्राहम ने ये कारण दिया। Instead, let me be alive and let them take my wife. चलो ठीक है, मैं जिंदा तो रहूंगा और मेरी बीवी को ले In जाऊंगा। actual sense, I don't think that Abraham loved his wife. तो हमारे भाई कहते हैं कि इसका मतलब अब्राहम अपनी बीवी से क्या प्रेम नहीं रखता था। Here comes the power of selfishness. आप देखिए कौन अपने बारे कितना सेल्फिशनेस, मतलब कितना लोग अपने बारे में सोचते हैं। Abraham loved himself. अब्राहम ने अपने आप से ज्यादा प्रेम रखा And that is the truth. और ये सत्य है। He loved himself. He don't love his wife. उसने अपनी पत्नी से प्रेम इतना नहीं रखा Because he don't want to die. क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, इसलिए अपनी बीवी को Rather let the king have my wife. ना ठीक है, राजा मेरी बीवी को ले जाए। And if my wife goes away, I can get another one. अगर मेरी बीवी चली भी गई तो मैं दूसरी ले आऊंगा, But I want not lose my life. लेकिन अपना जीवन तो बचा लूं। That is selfishness. ये तो मतलब अपने बारे में सोचना हुआ That is the reason why और यही वो कारण है today people lie because of selfish interest. लोग झूठ क्यों बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। People lie, they don't care what happened. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के जीवन में क्या हो सकता है। They don't care whose ox is gone. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का क्या नुकसान हो रहा They है। don't care how many people will die. उन्हें नहीं फर्क पड़ता कितने लोग मर जाएंगे। They don't care whose life will be taken away. उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसका जीवन चला जाएगा, But they care only what they will get. लेकिन उन्हें ये देखता है कि मुझे क्या मिलेगा। Oh, they have promised me 2 crore. अरे 2 करोड़ का वादा
किया है उन्होंने They मुझे। said I should come and testify सिर्फ about. जाके झूठी गवाही तो देनी है। I'll be so rich. अरे कितना अमीर हो जाऊंगा मैं। But who will die? They don't think. अरे कौन मरेगा मुझे क्या फर्क Who पड़ता will है? be condemned because you come and said lie? They don't मेरे think. झूठ बोलने से किसको नुकसान होगा मुझे क्या फर्क पड़ता है। Selfish interests. तो मतलब सिर्फ अपने बारे में It's सोचता। more of the reason where people lie. और इसी वजह से लोग आजकल झूठ बोलते हैं। What I will get is the reason why people are not consistent with truth. मुझे क्या मिलेगा यही कारण है कि हम सोचते हैं और हम सत्य के साथ खड़े नहीं रहते। The beginning is very easy. शुरुआत तो आसान होती है। Or when people say, "Oh, I love God. जब लोग कहते हैं ना मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम I रखता love हूँ, God with my heart. पूरे दिल से प्रेम रखता I हूँ, can do everything for मैं सब कुछ God." कर सकता हूँ। The question is how long? कब तक? प्रश्न ये है कब तक? You start with all your strength. आपने पूरे सामर्थ्य से शुरू तो किया, So fast. परमेश्वर की तरफ भाग रहे हो, At the middle, you are running slow. लेकिन बीच में आप थकते और हल्के हो Because you गए start to get tired. और परेशानियां तो जरा हल्के होते जा रहे हो। Truth is power. सत्य में सामर्थ्य है, Truth is medicinal. सत्य एक दवाई है। Tell yourself the truth. अपने आप से सत्य बोले। When you sleep, you snore. अगर आप सो रहे हैं, When your heart is free, अगर आपका दिल हल्का है, you don't need to think before you sleep. आपको सोने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। Why people are suffering from insomnia today? They can't sleep. They आज बहुत सारे लोग इस बीमारी से क्यों परेशान है कि उन्हें नींद नहीं आती, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद की दवाइयां लेते हैं, Because they surround themselves with lies. क्योंकि उन्होंने अपने आसपास सिर्फ झूठ रखा हुआ है। So before they sleep, they will think for 2 hours. वो सोने से पहले 2 घंटे तो सोचते And हैं their brain will become so hot. और उनका दिमाग बहुत गर्म हो And जाता when है they do it for 1 year, और जब यही चीज 1 साल तक चलती रहती है sleep will leave them. तो नींद ही चली They जाती will है, not sleep anymore. वो सो ही नहीं They पाते have to sleep with tablets. और दवाई खाए बिना सो नहीं पाते। But when you surround your life with truth, लेकिन जब अपने जीवन को आप सत्य से घेरते हो, when you surround yourself with truthful people, अगर आप अपने आसपास सत्य वाले लोगों को घेरते हो, I don't think you worry about anything in तो life. हमारे भाई कहते हैं उनको नहीं लगता कि आप जीवन में किसी चीज के लिए टेंशन लो। You will focus on what matters in your life. आप देखोगे कि मेरे जीवन में क्या मतलब रखता है, Because you know, for you to keep a lie working for a long time, क्योंकि आपको पता है कि झूठ ज़्यादा नहीं चलता। lie needs attention. झूठ बोलने में क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है बार बार कि क्या बोलना है। Because you will be thinking how to modify the आप lies. सोचेंगे कैसे इसको सुंदर बना के बोलूं कि ये You will झूठ be अच्छी thinking, लगे। you will be thinking the best way to keep it. आप सोचोगे झूठ को कैसे संभाल के रखूं कि इसको आगे बता दूं, And when they catch you, और जब ये आपको पकड़ लेंगे you will try to also modify it so आप सोचोगे that अरे झूठ people को will not पकड़ा see that you are गया, lying. अगर पकड़ा गया तो इस झूठ को ऐसे बोलना है ताकि ये फिर बच जाऊं। Abraham said, I thought, so the fear of God is not here. अब्राहम ने तो मुझे लगा कि इस जगह में परमेश्वर का भय तो है ही नहीं। Amen. Let's go from 12. I want to finish. Read that. I will have to go to another verse. Read from 12 to 18. I want to 12 से finish. 18 पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गाय, बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रहे। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक रहोगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद किया गया। Amen. If not God, sometimes you will be destroyed. अगर परमेश्वर ना हो आपके जीवन में तो कई बार आप नष्ट भी हो सकते हैं। See what truth can do. आप देखें सत्य क्या कर सकता है। After God brought truth, जब परमेश्वर सत्य लाया, everything was healed. हर चीज चंगी हो गई। The king himself was sick. राजा खुद बीमार था। The king, his wife also, did not give birth. उसकी बीवी कभी बच्चा नहीं जन सकती। The servant of the king was also sick. राजा का सेवक भी बीमार था। But when truth came, लेकिन जब सत्य आया, everybody was healed. हर कोई चंगा हो गया। The king gave some goods and
was peace. और हर जगह शांति हो गई। Then I was thinking, तो हमारे भाई सोच रहे थे, if God did not intervene, अगर परमेश्वर बीच में नहीं आते it would have been disaster. तो नाश होता। If God did not stop the sin to happen, अगर परमेश्वर अबीमेलेक को पाप करने से ना रोकते the whole family will be destroyed. तो पूरा परिवार खत्म हो जाता। That is what lie says. और झूठ यही करता है। But we have seen this Genesis before. There is no time. I want also us to go to Genesis chapter 26. हम खोलते हैं उत्पत्ति 26। I want to teach you something today. Genesis chapter 26, verse 1 to 11. Genesis chapter 26 from verse 1 to 11. उत्पत्ति 26 का 1 से 11। Read all at the same time. पेज नंबर 30। Genesis chapter 26 उत्पत्ति 26 का 1 से 11। from verse 1 to 11. I want to teach you something today. Pay attention. इसहाक को गरार में निवास। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार में फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताता उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश के आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। 6 इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिश्ती के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा था। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चित तेरी पत्नी है, फिर तू क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से पुकार कर सकता है, और तू हमको पाप में फंसाता। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उसकी स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार दिया जाए। Amen. आप देखें कि पिता ने जो किया उसके बेटे ने वही किया। Father, अब्राहम ने, son Isaac, इसहाक ने भी Sam. एक ही चीज करी, एक ही तरह का झूठ। Did you understand something? आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? The same story. एक ही कहानी दोनों की। It is not different. The same कुछ story. फर्क नहीं, दोनों ने अपनी पत्नियों को बहन बोला। Abraham married a beautiful wife. अब्राहम ने एक सुंदर लड़की से शादी करी। Isaac also married a beautiful इसहाक wife. ने भी सुंदर लड़की से But शादी at करी। the time of truth, लेकिन सत्य बोलने की जगह they पे say she's my sister. दोनों ने कहा ये मेरी बहन है। If the king slept with their wife, अगर उनके वहां के राजा उनकी बीवी के साथ सो जाते who to blame? तो किसके ऊपर किसके ऊपर दोष आता? राजा के ऊपर Or Isaac and या पति Abraham? के ऊपर? Who to blame? किसको हम दोष लगाते? Who to blame? किसको दोष लगाना चाहिए? If you are the judge, husband to blame, not the king. राजा को आप दोष नहीं लगा सकते। But I see something here. लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं? Something that is lacking. कुछ चीज है जो कमी है यहाँ पर। Something that is the problem, not in the days of Abraham, सिर्फ अब्राहम के दिनों में परेशानी नहीं थी, ऐसी परेशानी है but something that's still happening जो अभी today. भी होता है। The parents माता पिता find it very hard उनके लिए बहुत मुश्किल होता है to transfer truth to their generation. उनको अपने बच्चों तक सत्य को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। Abraham told to teach Isaac the son simple truths. अब्राहम को अपने बच्चे को सच सिखाना चाहिए था। If you want to die, die in truth. अगर तुझे मरना है तो मर जा, लेकिन सच बोल के मर। If you want to live, live in अगर truth. जीना है तो सच बोल के जी। There is no pain, there is no pain. अगर तो कोई दर्द नहीं है तो कोई जीत भी नहीं। Truth don't see any king, any president, any queen. सत्य
सत्य कभी भी कोई राजा प्रधानमंत्री कुछ नहीं देखता है, सत्य सत्य Truth है। have no set of people. सत्य कभी किसी लोगों से बदलता नहीं है। This is just the problem. सत्य यही परेशानी है आज। Isaac had experience. I mean, Abraham had experience, अब्राहम ने इस चीज का अनुभव किया था and he saw what God did. कि परमेश्वर ने क्या किया। I'm telling myself, हमारे भाई अपने आप से कह why रहे हैं, didn't he tell Isaac the song? उसने अब यही गलती जो की थी अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाई? Because he knows that Isaac will one day be a messenger of God. उसे पता था कि इसहाक भी आगे जाके परमेश्वर का दूत बनेगा। No matter who you encounter, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो, stand off on truth. सिर्फ सत्य पर खड़े रहें। She is your wife. अगर वो आपकी पत्नी है Never you deny her in any तो circumstances. किसी परिस्थिति में आपको उसे नकारना नहीं है। You see what is happening today? लेकिन आज क्या हो रहा है? A man will be with his lover, एक आदमी अपनी प्रेमी के साथ रहेगा and when the wife shows up, the wife will see two of them, और अगर एक आदमी किसी और लड़की के साथ रहेगा और अगर बीवी ने देख लिया and the lover will ask the husband, और जो वो लड़की है वो पूछेगी पति से, "Is this your wife?" क्या ये तुम्हारी बीवी है? The man will say, "I don't तो know. नहीं नहीं ये तो नहीं, मैं तो नहीं जानता इसको, I don't know." मैं नहीं जानता। Because he was afraid to lose the lover. क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अरे मैं सच बोल दिया तो He लड़की will say, छोड़ के "After चली all, जाएगी when I reach home, I will settle with my wife." और कि घर जाके बीवी को तो मना ही लूंगा लेकिन इसको तो नहीं छोड़ना। It happens. और आजकल ये होता है, When you ask people, "Oh, are you married?" जब लोगों से पूछते क्या तुम शादीशुदा हो, I say, "No, I am not married." लड़के कहते हैं नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ ही। Because if the lover find out he's married, क्योंकि अगर किसी लड़की को पता लग गया कि वो मैं शादीशुदा हूँ she will not say yes. तो मेरे साथ थोड़ी रहेगी। So the best is to say no. तो लोग कहते हैं I am divorced. You see? नहीं मेरा डिवोर्स हुआ है। Some people will say, even my marriage is better I am divorced even than married. So, but the problem that we have today लेकिन आज क्या परेशानी है is lack of parents transferring truth to कि their माता children. पिता अपने बच्चों को सच बोलना नहीं सिखाते, ना ही उसको ट्रांसफर करते। And that was the problem that we have और today यही परेशानियां चल रही है। between Isaac इसहाक के बारे में हम देखते and the हैं father कि Abraham. उसके पिता अब्राहम एक ही झूठ। That is what God loves, is truth. अब परमेश्वर तो प्रेम सिर्फ सत्य से करते हैं, झूठ से नहीं। The Spirit of God cries when we tell lies. परमेश्वर की आत्मा रोती है जब हम झूठ बोलते We हैं। saw in Abraham when God was not happy, God was very sad in the spirit. हम देखते हैं जब अब्राहम ने झूठ बोला तो परमेश्वर भी बहुत दुखी था, तभी परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेजी। God said, "No, I will not let this to happen." क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा बच्चा झूठ बोले और वो पाप कर दे। The Spirit of God was affected. परमेश्वर की आत्मा को दुख हुआ। So when we see that when we lie, our spirit, our God is being affected. तो हमें समझना चाहिए कि जब हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा दुखी होती है। So before you lie, think twice. तो अब से जो आप झूठ बोले उससे पहले 2 बार सोचें, Ask, will my God love this? क्या परमेश्वर खुश होगा मेरे झूठ Will the बोलने? Spirit of God be happy with me? परमेश्वर की आत्मा क्या मुझसे खुश होगी? I hope God will not punish me. तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पाप ना दे। I hope God will not be angry with my family. परमेश्वर मुझे दुखी तो गुस्सा तो नहीं करेगा मेरे परिवार पर। Especially when your lie is about to kill other people. और सबसे जरूरी तब जब आपका झूठ किसी और को नुकसान पहुंचाए। Especially when your lie wants to destroy other people. जब आपका झूठ किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। Ask yourself, अपने आप से पूछें, if somebody does say to me, अगर कोई मेरे साथ ऐसा ही करे जो मैं गलत कर रहा हूँ how will I feel? तो मुझे कैसा लगेगा? What I'm about to do to other people, तो जो मैं दूसरों के जीवन में करने वाला हूँ if they do something to अगर me, वही वो मेरे जीवन में कर दे तो shall I pray and ask God to kill them? क्या मैं परमेश्वर से कहूँ प्रार्थना कि परमेश्वर इनका खून कर दो? That is the question. ये प्रश्न है। We pray for God to kill our enemy. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे दुश्मनों को मार दो, One of the sins that we commit to other people. लेकिन उसका क्या जब हम लोगों के जीवनों में खराब करते हैं? Can we pray and ask God to kill us? क्या हम परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर मैंने गलत किया मुझे मार When दो? it comes to us, we always ask God for लेकिन जब हमारे forgiveness. ऊपर आते हैं तो हम तो माफी मांग लेते हैं, God forgive me for my परमेश्वर प्लीज मुझे sins. माफ कर दो, God, I will never do it मैं again. दोबारा नहीं करूंगी, God, don't be angry with प्लीज me. प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। But your enemy लेकिन आपके सामने is कोई a God to those who rise against me, परमेश्वर kill अगर them. मेरे सामने कोई खड़ा उसे मार ही डालो। You want them to die आप चाहते हो कि वो मर जाए and you want to live. लेकिन आप जीना चाहते हो। That is selfishness. ये क्या है कि अपने बारे में नहीं And that सोचते। is the root cause of all the lie on this earth. और यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग झूठ बोलते हैं। People want for themselves. लोगों को अपने लिए ही सब कुछ चाहिए, But if you care for others, लेकिन अगर आप दूसरों की चिंता करते
करते हैं, you know that it's only truth that will make you to care for तो others. सिर्फ सत्य ही जो आपको बढ़ाता है लोगों से अच्छा व्यवहार The करने में। truth is what Jesus had. सत्य ही यीशु के पास था That is why he could care for himself and और care for इसलिए वो others. अपनी भी चिंता करते थे और दूसरों की भी चिंता करते Amen. थे। आमीन। I want to conclude in 5 minutes. Let's go to Ephesians chapter 4 verse 25. इफिसियों की किताब 4:25। Ephesians chapter 4 verse 25. Concluding in 5 minutes. Ephesians chapter 4 verse 25. नया नियम Ephesians chapter 4 verse 268 पेज नंबर 268 पेज नंबर 4:25। 4:25. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। Amen. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Amen. We are members of one another. हम एक दूसरे के अंग हैं। God will never judge you what you do to yourself. परमेश्वर आपका न्याय इस पर नहीं करेगा कि आपने अपने साथ क्या किया। God will never judge you the truth you tell to yourself. परमेश्वर इस चीज पे भी आपका न्याय नहीं करेगा कि आपने अपने आप से क्या क्या सच बोला। But your neighbor, पर अपने your पड़ोसी से, friends, your आपके relatives, दोस्त, आपके रिश्तेदार, people around you, लोग जो आपके साथ रहते हैं, people that you control, जिनके साथ आप रहते हैं at your working place. या जिनके साथ आप काम करते हैं, Did you love everyone? क्या सबसे प्रेम रखते Did हैं? you tell truth? क्या आप सच बोलते Or हैं? you fight with everyone? क्या सबसे लड़ते हैं? We are members. We are one हम family. सब एक परिवार हैं। It is only when you start to care for people, जब लोगों की चिंता करते हैं, it is only then that God will see you as His तभी child. परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में Let's go देखेगा। to Psalm 51 verse 6. I हम want to खोलते हैं conclude. भजन संहिता Psalm 51 verse 6. 51 का चित्र। Psalm 51 verse 6. भजन संहिता 51:6। Psalm 51 verse 6. पेज नंबर 51:6। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। Amen. Behold, you desire truth in the world paths, and the hidden paths will make me to know wisdom. Truth is wisdom, and it comes from inner self. सत्य ही बुद्धि है और ये आती है अंदर से। When you have truth in you, अगर आपके अंदर सत्य है you become so light. तो आपको कितना हल्का महसूस होता है। Even you may be up to 100 kg, चाहे आप 100 किलो के हो तो भी। but I mean, in the spirit you are light. हमारे भाई कह रहे थे आत्मा में हल्की। But when you have lies in you, लेकिन अगर अंदर झूठ भरा हुआ है, you may be 47 kg. हो सकता है आपका वजन 40 से 45 किलो हो, तो भी चलना कितना मुश्किल Because होता है। what you are carrying is more than you. क्योंकि आप जो झूठ लेके घूम रहे हो आपसे ज्यादा भारी है। Truth is wisdom सत्य ही बुद्धि है। to those who have truth. जिन लोगों के पास सत्य है, God is saying they have everything. परमेश्वर कहते हैं उनके पास सब कुछ है। Because your truth will speak for क्योंकि you. आपका सत्य आपके लिए बोलेगा। You know, sometimes truth comes when you don't expect it. कई बार सत्य तब आता है जब आपने उम्मीद नहीं की होती। Because you are truthful in your life. Truth will always beat you. Amen. सत्य हमेशा आपसे मिलेगा। Let's go to Ephesians chapter 6 verse 14. इफिसियों 6:14। When you want to verse, we'll close. Ephesians chapter 6 verse 14. Ephesians chapter 6 verse 14. Ephesians chapter 6 verse 14. 270 पेज नंबर। इफिसियों 6:14। नया नियम 270। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहनकर Amen. Ephesians chapter 6 और पाँव में verse, मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। verse 14. Verse 6 verse 14. It says, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Amen. Guide yourself with truth always. अपने आप को हमेशा सत्य से भरें। Wherever you're going, जहाँ भी आप जाएं, truth is the only thing that सत्य को will पहन serve कर जाएं। you. Be truthful in your life. अपने जीवन में सत्य That बोलें। is the only thing that will take you where you are not permitted to reach. सिर्फ वही सत्य ही ऐसी चीज है जो आपको लेकर जाएगा जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे। Truth is favor. सत्य ही परमेश्वर की तरफदारी दिलाएगा। To become truth and sincere life is favor. अगर आप सत्य का जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में
परमेश्वर की तरफदारी आएगी। Somebody today, a story that happened in my country. भाई के देश में कोई ऐसा हुआ, A cleaner become a billionaire. एक सफाई कर्मचारी 1 करोड़पति बन गया। A cleaner become a billionaire. एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी How करोड़पति possible? How possible? कैसे बना? It's only truth that can do that. सिर्फ सत्य ही कर सकता है। A billionaire traveled all the way from United States एक करोड़पति अमेरिका से आया था, and he landed in the airport वो एयरपोर्ट में पहुंचा and he forgot his bag और अपना पैसों का बैग भूल and गया he went away. और वो आगे चला गया। And the cleaner was slowly cleaning और it एक सफाई करने वाला आराम से सफाई कर रहा था, and he made the bag. उसने बैग देखा, He took उसने उठाया and he left और लेके चला गया। and he opened the bag. उसने बैग खोला, It's lots of money. उसमें बहुत सारा पैसा था। His spirit was fighting. उसकी आत्मा भी लड़ रही, Shall I take this क्या money? इस पैसे को लेके घर चला जाऊं Shall I return it? या इस पैसे को वापस दे दूं? And if I return it, अगर वापस दे दिया I will be so poor. तो मैं तो गरीब का गरीब ही रह It's an जाऊंगा। opportunity for me to ये तो do मेरे this. अवसर है अमीर होने का, Let me just take the चलो money. पैसा लेके घर निकल लेता हूँ। 2 days he did not come to work. 2 दिन तक तो वो काम पे ही नहीं आया And the man came and complained to airport. और एयरपोर्ट पे वो आदमी आया, उसने कंप्लेंट करी कि मेरा बैग खो गया है, I am looking for my bag. मेरा बैग नहीं मिल रहा। वो आदमी आया, I am not worried about the money, मुझे पैसा नहीं चाहिए, but my documents. मेरे उसका डॉक्यूमेंट्स पड़े, मुझे बैग चाहिए। The guy did not come. वो आया ही नहीं। But the 3rd day, लेकिन तीसरे दिन he went to the police station वो पुलिस स्टेशन गया, and he reported the bag. कर्मचारी ने कहा And they called the और man. रिपोर्ट कराया और उस आदमी को बुलाया जिसका बैग था, And the man came. और वो आदमी आया, They opened the bag उन्होंने बैग खोला and he checked. और उन्होंने बैग चेक किया, Not even 1 rupee was एक नोट भी गायब नहीं था। The man was amazed. वो अमीर आदमी बहुत अचंभित हुआ He said, from today, कि आज से my company that is here, जो कंपनी मेरे इस देश में है, you will be the manager of this उस company. कंपनी के मैनेजर तुम हो गए। And that is how the guy picked up. और वैसे ही वो आदमी को ले लिया। Maybe let's say what is in the bag आप सोचो उस बैग के बारे में। was 2 crore, let's say. In American dollars, maybe it would be around चलो आप सोचो कि $100,000. अगर उसमें कोई डॉलर मतलब करीबन 2 करोड़ रुपया भी अगर उस बैग में होता, Maybe what we will fetch him. क्या होता? वो 2 करोड़ रुपए के लेकर वो अपने जीवन में क्या करता? Maybe he will buy 1 house and एक घर he खरीद लेता, गाड़ी खरीद लेता, अमीर हो जाता। But today he has thousands of crore. लेकिन आज वो हजारों करोड़ रुपया वो हर महीने कमाता है। It can only be possible when we are truthful. ये सिर्फ तब होता है जब हम सच बोलते हैं। Maybe his spirit of truth won the spirit of lie. इसका मतलब उसकी सच की आत्मा ने झूठ की आत्मा पर विजय पाई। Run away, take it and run away. वो लेके भाग सकता था। You are poor. Remember your family. उसका आत्मा बोल रही, तू गरीब है, अपने परिवार को याद कर, अपने बच्चों को याद कर। But the spirit of truth won over. लेकिन सत्य की आत्मा ने उस पर जय पाई। Return it back. उसने वापस किया। Whether you are dying, तो चाहे आप मर whether रहे you हो, have no food, चाहे आपके पास खाना ना हो, it doesn't belong to you. जो चीज आपकी नहीं है वो This नहीं is है। not your own. ये आपके खुद का नहीं है। Take it back. उसकी आत्मा ने बोला कि जा वापस दे दे। God will bless you more. परमेश्वर तुझे आशीष देगा। I need you here today with this story. और अगर आपने कहानी आज सुनी है, To those that are truthful, जो लोग सत्य बोलते हैं, let the spirit of God परमेश्वर की आत्मा continue to help you आपकी मदद हमेशा to करती be in है the society. ताकि हम समाज में अच्छा करें। In Jesus' यीशु के सामर्थ्य mighty नाम name we pray. हम प्रार्थना करें। Amen.